Database 42539. एक बार आप जब तक समझा सकते हैं। हाँ जी जी। प्रो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। सो 42539 तो प्रभुपाद इसमें निवृत्ति और अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। द वुमेन कंटिन्यूड in this material world, a householder's life brings all kinds of happiness in religion, economic development, sense gratification, and the begetting of children, sons, and grandsons. After that, one may desire liberation as well as material reputation. The householder can appreciate the results of sacrifices, which enable him to gain promotion to the superior planetary system. All this material happiness is practically unknown to the transcendentalist. They cannot even imagine such happiness. Purport. Purport में निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग का discussion. According to Vedic instructions, there are two paths for human activities. One is called Pravritti Marg and the other is called Nivritti Marg. The basic principle for either of these paths is religious life. In animal life, there is only Pravritti Marg. Pravritti Marg means sense enjoyment and Nivritti Marg means spiritual advancement. In the life of animals and demons, there is no conception of Nivritti Marg, or nor is there any actual conception of Pravritti Marg. Pravritti Marg maintains that even though one has propensity for sense gratification, he can gratify his senses according to the directions of the Vedic injunctions. For example, everyone has the propensity for sex life, but in demonic civilization, sex is enjoyed without restriction. According to Vedic culture, sex is enjoyed under Vedic instructions. Thus, the Vedas give direction to civilized human beings to enable them to satisfy their propensities for sense gratification. In the Nivritti Marg, however, on the path of transcendental realization, sex is completely forbidden. The social orders are divided into four parts: Brahmacharya, Grihast, Vanprasth, and Sannyas. And only in the householder life can the Pravritti Marg be encouraged or accepted according to Vedic instructions. In the orders of Brahmacharya, Vanprasth, Sannyas, there are no facilities for sex. In this verse, the woman is advocating Pravritti Marg only and is discouraging the path of Nivritti Marg. She clearly says that Yati is the transcendentalist who are concerned only with spiritual life, Kevalya, cannot imagine the happiness of Pravritti Marg. In other words, the man who follows the Vedic principles enjoys the materialistic way of life, not only by becoming happy in this life, but also in the next life by being promoted to the heavenly planets. In this life, such a person gets all kinds of material opulence, such as sons, sons and grandsons, because he's always engaged in various religious functions. The material distresses are birth, old age, disease, and death. But those who are interested in Pravritti Marg hold various religious functions at the time of birth, old age, disease, and death. Without caring for the distress of birth, old age, disease, and death, they are addicted to performing the special function according to the Vedic ritualistic ceremonies. तो बेसिकली प्रभु जी आपने लास्ट टाइम मैं इसका भी पढ़ देता हूँ जो भक्ति रसामृत सिंधु में व्हाट जीव गोस्वामी मेंशंस अबाउट शील एज अ धातु. The signification of the verbal root sheel is twofold. Pravritti Atmika, expressing action to worship, practice, and serve, and Nivritti Atmika, expressing non-action, to be intensely absorbed.
तो बेसिकली प्रभु जी दोनों इसमें तो जो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग निवृत्ति आत्म वो डिफरेंट है, वो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, राइट? हाँ, उसका रिलेशन नहीं है। यहाँ भक्ति से संबंधित जो प्रवृत्ति है उसको प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है या प्रवृत्ति कहा गया है। एक्चुअल में यहाँ चेष्टा की बात चल रही है। जो शील धातु है ना, तो जी। धातु का मूल अर्थ व्यापार और व्यापार का जो अर्थ है चेष्टा। तो चेष्टा दो प्रकार की है, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। तो जो हम भक्ति में कुछ कार्य करते हैं, जैसे श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जप इत्यादि करते हैं, तो ये सारी चेष्टाएं जो है प्रवृत्ति मार्ग की है। और जो हम त्याग करते हैं, जैसे एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना, और भी जो असत्संग त्याग करना, तो ये या अपराध आदि का त्याग करना, तो ये सब निवृत्ति वाली चेष्टा है। तो यहाँ पे उसको भक्ति से रिलेटेड कहा गया है। और वैसे शास्त्रों में जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का वर्णन आता है वो अलग सेंस में आता है। कई बार प्रवृत्ति मार्ग कर्म मार्ग को कहा जाता है, अधिकतर कर्म मार्ग को ही प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। कई बार गृहस्थ जीवन को भी प्रवृत्ति वाला बताया जाता है, और संन्यास आदि को निवृत्ति वाला बताया जाता है, यानी ज्ञान आदि को निवृत्ति मार्ग बताया जाता है। कई बार भक्ति को भी निवृत्ति मार्ग बताया जाता है, क्योंकि उसमें भी भोगों की प्रधानता नहीं होती। तो इस प्रकार से जिस अर्थ में शास्त्रों में प्रवृत्ति और निवृत्ति है उस अर्थ में यहाँ नहीं है। यहाँ भक्ति में प्रवृत्ति को प्रवृत्ति बताया गया है, और भक्ति में जो चीजें नहीं करनी है उसको यहाँ निवृत्ति बताया गया। और दोनों ही चेष्टा के अंतर्गत आ ही रही है, दोनों ही प्रकार की चेष्टा है। So Sachitanand Vigrah Prabhu, do you have any further question on this? We read the purport Uh, which you had shared. it is clear, Prabhuji. I think the same Sanskrit word used in different contexts. So I got it, Prabhuji. Okay, good. हम्म। और लास्ट टाइम प्रभु जी आपने ये भी क्लियर किया था कि हम ऐसा इक्वेट नहीं कर सकते कि प्रवृत्ति आत्मिका इज इक्वल टू चेष्ट रूपा एंड निवृत्ति आत्मिका इज इक्वल्स टू भाव रूपा, ऐसा भी नहीं है। नहीं नहीं, मतलब भाव रूपा अलग है, जिसमें प्रीति और विषाद के भाव होंगे। क्योंकि आगे चल के जो भक्ति में भाव डेवलप होंगे, जैसे संचारी भाव, वह है ना, जिनको हम व्यभिचारी भाव कहते हैं, या जो भाव के प्रसंग स्तर पे आएगा तो और भाव डेवलप होंगे। तो उन भावों को भी पहले से ही रूप गोस्वामी ने यहाँ पे इंगित कर दिया, इसलिए इसको भाव रूपा भी बताया, ताकि भक्ति जो है ये, जिसकी डेफिनेशन है, ये आगे तक लागू हो उत्तमा भक्ति की। ऐसा नहीं कि साधना भक्ति में तो उत्तमा भक्ति लागू हो रही है, पर प्रेमा भक्ति में जाके डेफिनेशन बदल गई। तो इसलिए ये भाव रूपा भी कही। और भाव जो है जो प्रीति और विषादात्मक है, पर वो जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक भाव का आना और एक भाव का जना, यानी सत्ता का जब होना होता है तो असत्ता का नहीं होना होता है, और जब असत्ता होती है तो उस समय सत्ता नहीं होती। तो इस प्रकार से इसमें भी क्रिया है। तो भावों को भी वो कह रहे हैं चेष्टा के अंतर्गत ही रख लो ना, तो भाव को भी चेष्टा के अंतर्गत ही मान रहे हैं। इससे वो जीव गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं कि मानस तद्भाव रूपस्य सत्वा सत्वे तु परस्पर उपमर्दित्वात् चेष्टा अंतर्गते एव। परस्पर ये एक दूसरे का अपमर्दन करने वाले हैं। यानी एक भाव आएगा तो दूसरे पहले वाले भाव का वो खंडन कर देगा या उसका विरोध कर देगा, दूसरा भाव चला जाएगा। तो एक आएगा एक चला जाएगा, तो ये भी चेष्टा के अंदर कदी माना गया है। अथवा एक सत्ता है, जैसे मान लो दिन है, तो उसका मतलब रात नहीं है ना, रात है तो दिन नहीं है, एक का होना दूसरे का अभाव बताता है। तो इसको भी चेष्टा के अंतर्गत ही माना जाएगा इस प्रकार से। यानी भाव रूप भी अल्टीमेट जो है क्या मानी जाएगी, चेष्टा मानी जाएगी। हम्म। इसलिए कह रहे हैं चेष्टा अंतर्गते एव, कि भाव भी चेष्टा के अंतर्गत ही आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि भाव भी उदय हो रहे हैं और भाव भी क्या हो रहे हैं, हृदय में समा रहे हैं। तो इसलिए वो भी अंततः चेष्टा ही है। तो भक्ति चेष्टा रूप से ही मानी जाएगी, प्रधान रूप से कहने का भाव ये।
ठीक है। द्वारकानाथ हरिप्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? आपने? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। यू कैन आंसर। Yes. प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे हाँ इस निवृत्ति और प्रवृत्ति में, हम्म। इसमें एक जगह ऐसे समझ में आ रहा है कि जैसे निवृत्ति में माइंड जो है, माइंड से ज्यादा हम एंगेज हैं अनुशीलन भगवान की वर्शिप में या उनके संबंधित कार्यों में, क्रियाओं में, और प्रवृत्ति में डायरेक्ट एक्शन भी इन्वॉल्व है। और एक पॉइंट उसी समय साइमल्टेनियसली ये भी समझ में आ रहा था कि निवृत्ति मीन्स जो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि फेवरेबल को करना प्रवृत्ति, और निवृत्ति मतलब जो अनफेवरेबल है उसको त्यागना। तो दोनों को साथ में लेके चलना है, मतलब इस तरह से अप्रोच है। हाँ, दोनों को साथ में लेके चलना है। पर ये जो आपने पहले कह रहे थे ना कि वो प्रवृत्ति ऐसे समझ में आ रहा था, नहीं ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही मन की मुख्य क्रिया है। कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो उसमें मन चाहिए ही चाहिए, है ना। और किसी कार्य से निवृत्त हो गए तब भी मन चाहिए, तो मन तो दोनों में मेन है। इसलिए चेष्टा मन के द्वारा भी मानी गई है, मन के द्वारा भाव भी माना गया है, पर चेष्टा भी मानी गई है। और अंत में फिर भाव को भी चेष्टा के अंतर्गत ही माना गया है। तो किसी भी क्रिया को होने में मन की आवश्यकता है, चाहे वो प्रवृत्ति की हो चाहे वो निवृत्ति की हो। प्रवृत्ति में भी फिजिकल तो चाहिए ही चाहिए, पर उसके साथ मन का भी लगना जरूरी होता है। वरना कहते हैं ना कई बार, जैसे कोई सुन रहा हो और उसको समझ में ना आए तो कहते हैं तेरा ध्यान कहाँ है, क्या सुन रहा है फिर, तो तेरा मन कहाँ है। तो उसमें मन का लगना हर क्रिया में आवश्यक है, नहीं तो वो क्रिया भी नहीं मानी जाती सही ढंग से, इस प्रकार से। जी प्रभु जी, और उसमें प्रभु जी ये ऐसा भी समझना चाहिए कि उसमें मन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होगा, इस तरह से वो अंतर भी थोड़ा सा उसमें ऐसा हाँ, लग रहा बिल्कुल है, मन का तो है हमेशा। मन की प्रधानता ही है क्रियाओं में। इसलिए वेदों में कहा गया मना एव संसार, कि संसार और कुछ नहीं है, तुम्हारा मन ही संसार है। तत्प्रयत्ने न शोधये, उसको प्रयत्न से शुद्ध करो। तो मन की प्रधानता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जब इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे निवृत्त आत्मिका मींस एक्सप्रेसिंग नॉन एक्शन, मतलब उसमें हम्म। मन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बट नॉन एक्शन उसमें क्या डिपिक्ट करता है, क्या उसमें समझ। भी नहीं, फिजिकल भी है। जैसे अब आप एकादशी आदि को अन्न नहीं खा रहे, ग्रहण कर रहे, तो ये फिजिकल आप कर रहे हो ना, अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, दोनों क्रियाएं हो रही हैं, निवृत्ति में भी फिजिकल भी चीजें हो रही हैं। अपराध आदि से आप बच रहे हो, किसी के प्रति अपराध ना हो, तो ये फिजिकल भी हो रहा है और मन से भी हो रहा है। मतलब हम किसी का कोई ऐसे टच ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो शरीर से भी तो ध्यान रखते ही हैं। तो निवृत्ति में शरीर की क्रियाएं भी हैं, ऐसी बात नहीं है। फिजिकल भी है और मानसिक भी है, दोनों ही है, इस प्रकार से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। Prabhuji, you're talking on mute, Prabhuji. Hare Krishna. आप म्यूट हैं प्रभु जी। Oh, sorry. There was one more question from Arpana Mataji. Does Nivritti Atmika mean detachment and not affected from joy and sorrow in the mind? ये प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने कि क्या निवृत्ति आत्मिका का मतलब है कि डिटैच हो जाना, और फिर ये यहाँ पे वो निवृत्ति का अर्थ जो वो ले रहा ना, जो शास्त्रीय परिभाषा से, वो अर्थ नहीं है। यहाँ पे भक्ति की चेष्टाओं को ही, कुछ चेष्टाएं ऐसी हैं जो करने वाली हैं, और कुछ चेष्टाएं ऐसी हैं जो नहीं करने वाली हैं। जैसे योग में होता है ना यम और नियम, तो नियम क्या होते हैं, जो करने वाले होते हैं वो नियम होते हैं, और जो न करने वाले होते हैं वो यम होते हैं। जैसे अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, है ना, असत्य नहीं बोलना, इस प्रकार से कई ऐसे जो नियम है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी भक्ति में कई निवृत्ति वाली चेष्टाएं हैं।
तो जिनका हम वर्णन कर चुके हैं जो नहीं करनी, इसलिए जो 64 भक्ति अंग बताएंगे तो पहले 10 भजनांग करने वाले हैं और उसके बाद 10 भजनांग वो हैं जो नहीं करने वाले। इस प्रकार से बताएंगे, वो भक्ति की ऐसी डेफिनेशन सिद्ध करना चाहते हैं जिसमें भक्ति का हर अंग आ जाए, इसलिए वो इस प्रकार से परिभाषा कर रहे हैं। तो वो आगे 10 अंग आएंगे जब हम 64 भजन अंगों की चर्चा करेंगे, तो उसमें जो 11 से लेकर 20 तक हैं वो वही हैं जो नहीं करने, निवृत्तियात्मक है। तो निवृत्ति का मतलब यहाँ न करने वाले कार्य है भक्ति में, इस प्रकार से। ठीक है। एक प्रभु जी, ये जब चेष्ट रूपा समझा रहे हैं हम्म इसमें meditation using the mind हम्म with conscious intention would be included in Cheshtarupa Anushila. हम्म But the emotional states in the mind, either temporary Vyavvichari Bhav, such as Vishad, or permanent Sthai Bhav, such as Preeti, are Bhavrupa. हम्म This Bhavrupa Anushilam takes place on attaining Bhava and Prem. हम्म Thus, the activities of sadhana bhakti are classed as Cheshta Rupa. At the level of Bhava and Prem, Cheshta Rupa Anushilam takes the form of Anubhavas. हम्म एक्चुअल में ये कहने का भाव है कि जो भाव रूपा भक्ति है, कोई कह सकता है कि भाई वो तो आएगी भाव की अवस्था में, जब 33 व्यभिचारी भाव उत्पन्न होंगे या स्थायी भाव उत्पन्न होंगे, ये सब भाव उत्पन्न होंगे, तो उस समय जब भाव भक्ति के धरातल पर कोई पहुंच जाएगा, तो उस समय जो भाव के अनुभाव हैं वो चेष्टा रूप हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। उस समय भी भाव की बाहरी दशा होगी, और भाव की बाहरी दशा क्या होगी उसको अनुभाव कहेंगे, और वो अनुभाव ही चेष्टा के अंतर्गत आ जाएंगे, इस प्रकार से ये कहने का भाव। तो अंततः मतलब ये वहां पे भी चेष्टा रूप भक्ति तो रहेगी रहेगी, चाहे इवन प्रेम में कोई पहुंच जाए तब भी चेष्टा रूप रहेगी। उस समय अनुभाव ही चेष्टा के रूप में माने जाएंगे, ये कहने का है अर्थ यहाँ पे। जैसे जब भाव भक्ति आती है तो उससे 9 अनुभाव ही तो पैदा होते हैं, और उनको फिर चेष्टा रूप मान लेते हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बन समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वस्ति स्थले, इत्ति आदय अनुभावास्यु जात भावस्यु अंकुरे जने। कि ये 9 अनुभाव है, तो ये 9 अनुभाव चेष्टा के अंतर्गत आएंगे, इस प्रकार से ये कहने का भाव। जब मतलब भक्ति भाव के धरातल पर पहुंच जाएगी तो कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर तो चेष्टा रूप नहीं रहेगी भक्ति, क्योंकि अब तो भाव पे प्रेम पे पहुंच गया। नहीं, उस समय भी वो चेष्टा रूप रहेगी। भाव के बाहरी लक्षण जो अनुभावों के रूप में प्रकट होंगे वो चेष्टा के रूप में रहेंगे, और भाव के जो बाहरी जो क्रियाएं हैं साधक की, श्रवण कीर्तन आदि, वो चेष्टाओं के रूप में रहेंगी। तो भक्ति चेष्टा रूप तो प्रेम की अवस्था में भी रहेगी ही रहेगी, इस प्रकार से। ठीक है। और 21वां में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हम्म 21, एक सेकंड, दिस इज ऑन भाव रूपा. Vishwanath Chakravarti Thakur commentary also mentions that the avoidance of seva and नाम अपराध and other अंगास, जो आप बता रहे थे 11 से 20, है ना, हाँ, जो 64 अंगों में से हैं, चौसठ अंग। mentioned in section on sadhana bhakti should be included in another class called abhava rupa anushila. हाँ This is not included in chesta rupa since it does not involve action. It is also not included in bhav rupa anushilam since it is not connected with emotional states. तो इसको अभाव रूपा क्या है, मतलब ये नहीं करने वाले कार्य हैं, और इसमें भी कह रहे हैं ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा, तो इसको हम अभाव रूपा जो है अनुभव मानेंगे। इस प्रकार से जो 11 से 20 तक हैं, पर ये अभाव रूपा भी किसके द्वारा होगा, मन के द्वारा होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ भी नहीं होगा, नहीं, बाहर से भी प्रयास किया जाएगा। जैसे मान लो कोई कहे कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, तो वो बाहर से भी प्रयास करेगा, शरीर के द्वारा भी।
है ना। वो ऐसा नहीं कि भाई मैंने मन से सोच लिया मैं अन्न नहीं खा रहा, पर अब मैं वैसे कभी कभार थोड़ा शरीर से खा लेता हूँ, मन से मैं नहीं ग्रहण कर रहा, ऐसा नहीं होगा। शरीर से भी उसको चेष्टा करनी पड़ेगी, है ना। मन से वो किसी का अपराध नहीं कर रहा, मैं मन से किसी का बुरा नहीं सोचता, पर मैं शरीर से अपराध कर देता हूँ, ऐसा नहीं। शरीर से भी उसको अपराधों का अभाव करना पड़ेगा, तो तब भी क्रिया तो तब भी ये रहेगी। प्रधानता मन की ज्यादा हो जाएगी, पर क्रिया तब भी रहेगी, इस प्रकार से। जैसे ये कहा गया है कि आप किसी वैष्णव को देख के स्माइल नहीं करो, तो वो भी हाँ, काइंड ऑफ। तो भी क्रिया ही हुई ना, मतलब मन में प्रसन्न भी होना है और बाहर से उसको शो भी करना है, इस प्रकार से। ठीक है। ये हो गया। तो अभी कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? मैं पढ़ो प्रभु जी। Shanmugh Prabhu ji, you want to read? Yes. Yeah, please. We have to start from this, however. Hare Krishna. However, emotional states of sattva and even non-sattva are included in Chestarupanusilanam because both are suppressed by action. Sattvas are intense emotions which overcome the heart, but under the pressure of a limited body, spontaneously manifest bodily transformations, actions called sattvika bhavas. Even though the action is unconscious and the origin is the emotion, it is classed as Chastarupa because of the consequent and obvious active element. Other emotions, which are not so intense and are not classed as sattvas, if they are similarly eclipsed in favor of conscious actions, are called anubhavas. Though the immediate cause is emotion, anubhavas are classed as chastarupa because of preponderance of conscious action. Hare Krishna. हम्म तो ये वही चर्चा कर रहे हैं जी गोस्वामी, कि जो भाव है वो भी एक भाव, एक सत्ता का होना और सत्ता का न होना, सत्ता असत्वे तु, इस प्रकार से कह रहे हैं, परस्पर उपमर्दितत्वात्, और ये दोनों एक दूसरे का उपमर्दन करने वाले हैं, और इसलिए इन भावों को भी चेष्टा के अंतर्गत आपको मानना पड़ेगा। चेष्टा अंतर्गत एवह, और ये इस प्रकार से जो मतलब ये प्रीति और विषाद वाले जो भाव हैं, है ना, तो इन भावों को भी अंततः वो ले आए हैं चेष्टा के अंतर्गत। और आगे जो भाव उत्पन्न होंगे इस प्रकार से, जो तब उसमें भी जो अनुभाव इत्यादि होंगे वो चेष्टा के अंतर्गत आ जाएंगे, ये कहने का यहाँ पे भाव है इस टीका में। आपने सत्वा के बारे में, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, प्रेम भक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको सत्व कहते हैं। पर यहाँ पे सत्व का मतलब है किसी का होना, हाँ हाँ। किसी एक सत्ता का होना और किसी सत्ता का अभाव होना, सत्य असत्य तु, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे अर्थ है। अगर वो सात्विक भाव भी मान लेते हैं, तो वो जो कि प्रेम भक्ति में आएंगे, तो उन सात्विक भावों के भी कुछ बाहरी चेष्टाएं नजर आएंगी, तो इस प्रकार से वो भाव जो है भाव में आ जाएंगे, पर उनके जो अनुभाव हैं वो चेष्टा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो उनके कहने का भाव है, एक सत्ता का होना, एक सत्ता का न होना, ये एक दूसरे का अपमर्दन करने वाले हैं, और एक दूसरे का अपमर्दन करने के कारण ये सब भी चेष्टा के अंतर्गत ही माने जाएंगे। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे वो जे गोस्वामी भी इतना ही समझा रहा है। इस प्रकार से ये सब चेष्टा के अंतर्गत ही आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। प्रभु जी, चेस सत्ता असत्ता मतलब ट्रूथ एंड नहीं, ट्रूथ और वो नहीं है। सत्ता का मतलब है किसी का होना, होना। और और असत्वे, वैसे वास्तविक शब्द संस्कृत में सही शब्द है सत्वे असत्वे। सत्वे मतलब होना और असत्वे मतलब नहीं होना। तो ये, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ, इस ओके। प्रकार से, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे दिन है,
तो दिन का होना और रात का नहीं होना ये साबित करता है। जैसे कहीं रात है तो वहां दिन का होना नहीं साबित करता। तो इस प्रकार से ये होना और न होना भी, जो कोई चीज यहाँ तो होगी या कोई चीज नहीं होगी, उसकी एक की सत्ता रहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे का उपमर्दन करने वाले हैं। तो इसलिए इनको भी क्या करना मानना पड़ेगा, चेष्टा के अंतर्गत मानना पड़ेगा। जैसे किसी के अंदर प्रीति होगी तो उसके अंदर विषाद नहीं होगा, तो उस समय विषाद का अभाव हो जाएगा। तो इसलिए उसको भी, जब विषाद होगा तो प्रीति नहीं होगी। तो इस प्रकार मन के इन भावों को भी हम चेष्टा के अंतर्गत ही रखेंगे, ये कहने का है। थैंक यू प्रभु जी। और इसमें ये जो लाइन है प्रभु जी, हम्म। कि इवन दो द एक्शन इज अनकॉन्शियस एंड ओरिजिन इज इमोशन, इट हम्म। इज क्लास्ड एज चेष्टा रूपा बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंट एंड ऑब्वियस एक्टिव एलिमेंट। क्योंकि वो जो सात्विक भाव है वो हम्म। बाहरी रूप से, जैसे आदमी रो रहा है, तो जो हाँ। रोना है आंखों से आंसुओं का निकलना है, वो तो एक्सटर्नल है, इसलिए वो हाँ। चेष्ट रूपा में क्लासिफाइड होगा। हाँ, चेष्ट रूप में आई है। कुछ कुछ क्यों? क्रियाएं जो होंगी, शरीर की कोई भी हलचल हो रही है हम्म, तो वो चेष्टा मानी जाएगी। चेष्टा का सिंपल मतलब क्या है, जहां इंद्रियों की, शरीर की कोई भी हलचल पैदा हुई तो वो चीज चेष्टा के अंतर्गत आ जाएगी, इस प्रकार से। तो बेसिकली जो भी सात्विक भाव हैं या अनुभाव हैं, उसमें दोनों कंपोनेंट है, उसमें भाव का भी, भाव रूपा भी और चेष्ट रूपा भी है, चेष्टा ऐसा है। रूपा भी, हाँ, क्योंकि देखो, जब शरीर में कहेंगे रोमांच हो गया, हम्म तो रोमांच का जो भाव है मतलब मन में आया, पर वो रोमांच की क्रिया तो शरीर में दिखाई देगी ना, जो एक एक रुआं खड़ा हो जाएगा, हम्म। है ना। अष्ट सात्विक विकार में जैसे पसीना आ गया, तो पसीना ये कहाँ दिखाई देगा, शरीर में दिखाई देगा ना। तो चेष्टा रूप तो रहेगी भक्ति, अष्ट सात्विक विकार जब उत्पन्न होंगे तब भी चेष्टा रूप में तो वो प्रकट होगी होगी, इस प्रकार से। Does anyone has any question or move? Okay, yeah, Shanu Prabhu, you can go ahead. Krishna Anushila. Hare Krishna. Krishnanusilanam. With this consideration of Chestarupa and Bhavarupa Bhakti, Anushilanam means service for persons related to Krishna or service for Krishna directly. That is the meaning of Krishna Anushilanam. Because this definition also includes persons related to Krishna as well as Krishna himself, it avoids the fault of being too narrow. Thus, angas of bhakti, such as taking shelter of Guru's lotus feet, may be included in bhakti even in Bhavarupa Anushilanam. At the stage of bhava, sthayi bhavas and vyabhichari bhavas may be expressed in relation to Guru within this definition of bhakti. This service or Anushilanam, obtainable only by the mercy of Krishna and his devotees, is a transformation of the Lord's Swarupa Shakti and thus is not material but spiritual. However, one should understand that though it is purely spiritual, it makes its appearance and is not created since it is eternal in the body, mind, and words by taking over the functions of the body, mind, and words. This will be clarified later on. In this verse, the word Krishna also indicates bhakti for other forms of God because Krishna is Swayam Bhagavan, including all other forms of God, such as Nrsimha. Gradation of all these forms will be considered later. Hare Krishna. हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो मान लो उसमें कोई प्रश्न करे कि भाई कृष्ण अनुशीलन उत्तम भक्ति है, तो जो गुरु अनुशीलन कोई करे तो वो उत्तम भक्ति नहीं होगी क्या, या कोई राम अनुशीलन करे या नरसिंह अनुशीलन करे वो उत्तम भक्ति नहीं होगी। तो इसके लिए उन्होंने एक समास दिया, और समास क्या है, आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरोत्तम।
तो ये जो कृष्णा अनुशीलनम है, इस समास के दो प्रकार से इसका विभाग किया जा सकता है। पहला विभाग जी गोस्वामी ने कहा किया, कृष्ण संबंधी अनुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम। और दूसरा विभाग किया, कृष्ण अर्थम वा अनुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम। ये मध्यम पद लोपी समास है, मध्यम पद का लोप हो जाता है, तो इसलिए ये समास बनता है। इसका मतलब है कृष्ण संबंधी अनुशीलनम, यानी संबंधी हटा देंगे और खाली पद रह जाएगा कृष्ण अनुशीलनम, तो ये समास बन गया। या फिर कृष्ण अर्थम अनुशीलनम, तो उसमें भी मध्यम पद हटा देंगे अर्थम, और ये बन जाएगा कृष्ण अनुशीलनम। तो कृष्ण संबंधी में जो आगे चल के आदो गुरुपाद आश्रय ये भक्तियों का वर्णन करेंगे, तो वो भी आ गए, क्योंकि कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का अनुशीलन भी कृष्ण अनुशीलन है। और ऐसा कृष्ण अनुशीलन उत्तमा भक्ति कहा जाता है, उत्तमा भक्ति कही जाती है। तो इसलिए वो इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं कि कोई भी परिभाषा, कोई भी डेफिनेशन इससे छूटे ना। वरना कोई कल को कह सकता है कि भाई क्यों किसी भक्त का अनुशीलन करना ये उत्तम भक्ति नहीं, क्या प्रहलाद आदि का अनुशीलन करना उत्तम भक्ति नहीं है? तो इसलिए आप कह रहे हैं नहीं नहीं, वो भी उत्तम भक्ति है, क्योंकि कृष्ण संबंधी भी यहाँ पे माना गया है। इसलिए कृष्ण अनुशीलन का मतलब केवल कृष्ण नहीं है, कृष्ण से रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं उनका अनुशीलन भी कृष्ण अनुशीलन है। चाहे वो भक्त हो, प्रहलाद, ध्रुव आदि, अथवा भागवतम हो, भगवान का नाम हो, जो सब भी हो कृष्ण से संबंधित, वृंदावन आदि धाम हो, तुलसी आदि हो, ये सब कृष्ण अनुशीलन में आएंगे। और कृष्ण अर्थम का मतलब है या फिर कृष्ण के लिए डायरेक्ट किया जाए, तो वो भी कृष्ण अनुशीलनम है। तो इसलिए इस समास को उन्होंने कहा, उद्धृत किया, ये समास पद है, और ये मध्यम पद लोपी समास है इसमें, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि इस व्याख्या से तत्संबंध मात्र से तादर्थ्यम वा, आगे जो हम गुरुपाद आश्रय आदि भक्ति बताएंगे वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर भाव रूप में जो है स्थाई व्यभिचारी आदि भाव आएंगे, इस व्याख्या से हमने उनको भी गोदी उठा लिया, यानी वो भी इस व्याख्या से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अनुशीलन भाव मन के द्वारा भी हो रहा है। तो इस प्रकार से भाव भी इसमें आ जाएंगे और चेष्टा भी इसमें आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। और स्थायी व्यभिचारी भाव भी, उसकी अव्याप्ति नहीं होगी, यानी ऐसे लक्षण नहीं बता रहे कि जो अव्याप्ति हो जाए। देखो किसी के भी लक्षण वो नहीं बताने चाहिए, या तो अव्याप्ति हो या अति व्याप्ति हो या असंभव हो। जैसे मान लो कोई गाय का लक्षण बताना चाहे कि गाय कैसी होती है, तो कोई कहे कि भाई जिसके चार पैर हैं वो गाय है। अब ये लक्षण ठीक है कि नहीं है? कौन बताएगा? मतलब कोई कहे कि जिसके चार पैर हैं वो गाय है, लक्षण ठीक है कि नहीं है? फिर ठीक है लेकिन काफी नहीं है। हाँ, इसमें क्या हो गया है, अति व्याप्ति हो गई है। क्योंकि इसमें फिर वो गधा भी आ जाएगा, है ना, कुत्ता भी आ जाएगा, इसको कहते हैं अति व्याप्ति। लक्षणों का आपने ऐसा लक्षण बता दिया जो लक्षण ठीक होने के बाद भी उसमें बहुत सारी चीजें और आ जाएंगी, तो इस लक्षण को नहीं स्वीकार किया जाएगा। या कोई कहे कि भाई गाय किसे कहते हैं, जो आकाश में उड़ती है वो गाय है। अब ये लक्षण कैसा है? ये लक्षण भी असंभावना है, ये तो असंभव है, गाय आकाश में उड़ ही नहीं सकती। तो रूप गोस्वामी ना ऐसे लक्षण दे रहे हैं जो अति व्याप्ति वाले हैं, और ना ऐसे दे रहे हैं जो अव्याप्ति वाले हैं, और ना ऐसे लक्षण दे रहे हैं जो असंभव है। उनका बिल्कुल सिंपल लक्षण है कि भाई जो कृष्ण के फेवर में कार्य है वही उत्तमा भक्ति है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। और इसके कारण से उसमें जो कृष्ण से संबंधी में गुरुपाद आश्रय आदि भी सब आ जाएंगे उसमें, उसको अलग से, और जो है भाव भक्ति के भी सारे लक्षण इसमें आ जाएंगे। किसी की अति व्याप्ति नहीं होगी और न अव्याप्ति होगी। अच्छा जी भाई, ये फिर ये अपने आप करने से हो जाएगा? फिर हम चलो भक्ति करते हैं कल से, अब हमें डेफिनेशन तो पता चली गई है ना, तो हम करते हैं, कर सकते हैं ऐसे?
अब प्रयास करते हैं भाई भक्ति करने का, तो फिर जी गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं, ये जो क्या है, एतच्च, यानी एतत् का मतलब यह कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण तद्भक्त कृपया एव लभ्य, ये कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होगा। अपने प्रयास से कोई भक्ति नहीं कर सकता कि मैं अब सुधर गया हूं कल से भक्ति करूंगा, है ना, ऐसे नहीं हो सकती। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? कृपा से प्राप्त होगी। इसलिए कह रहे हैं एतत् च, एतत् शब्द उत्तमा के लिए नहीं कह रहे, एतत् कह रहे हैं अनुशीलन के लिए, इसलिए पुल्लिंग में कह रहे हैं एतद अनुशीलनम कृष्ण तद्भक्त कृपया एव लभ्य, एव का लगा दिया कि उन्हीं की कृपा से प्राप्त होगा। क्यों भाई? उनकी कृपा से प्राप्त क्या होगा? कोई भी नाम ले लेगा और कोई भी भगवान के बारे में सुन लेगा तो कर सकता है, इसमें क्या है ना। और फिर ये मान लो कोई प्रश्न करे भी, ये भी तो ऐसे ही है जैसे संसार में नाम होते हैं, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये जो कृष्ण भक्ति है ये भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है और स्वरूप से अप्राकृत है। पर ये हमारे इंद्रिय आदि मन आदि में जब आविर्भूत होती है तो उसका स्वरूप ले लेती है, उसकी वृत्ति ले लेती है। पर ये भक्ति प्राकृत नहीं, ये दिव्य है। यानी जो साधना भक्ति है वो भी दिव्य है, अलौकिक है, अप्राकृत है। वो हमारे शरीर में आ रही है, अथवा हम शरीर से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये अब हमारे शरीर जैसी हो गई है, ये भौतिक हो गई है, तीनों गुणों में हो गई है। ये तीनों गुणों से परे है। इसे कह रहे हैं स्वरूप तो श्री भगवत स्वरूप शक्ति वृत्ति, और स्वरूपतम अप्राकृतम अपि, और काय आदि वृत्ति तादात में न आविर्भूतम इति, और शरीर आदि की वृत्तियों के रूप में आविर्भूत होती है, मन की वृत्ति के रूप में आती है भक्ति। पर यह मन की वृत्ति नहीं है, शरीर की वृत्ति नहीं है, उसके भीतर आ रही है। जैसे अग्नि लोहे से सदैव अलग रहती है, पर अग्नि लोहे के भीतर आ सकती है कि नहीं आ सकती है? और वो लोहा भी क्या करने वाला बन सकता है? जलाने वाला बन सकता है किसी को, पर वो उसकी नेचुरल शक्ति नहीं है। ऐसे ही भक्ति हमारी शक्ति नहीं है, भक्ति भगवान की शक्ति है। अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है। और हमारी इंद्रियों में अगर भक्ति आ गई है, हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, तो उसका मतलब ही नहीं भौतिक हो गई है, ये स्वरूप से अप्राकृत है, दिव्य है, पर हमारे शरीर आदि में प्रकट हो जाती है ना। इसलिए कह रहे हैं, और आगे फिर एक शब्द की और व्याख्या कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कृष्ण भक्ति ही उत्तमा भक्ति है, तो राम नरसिंह आदि की भक्ति उत्तमा नहीं है। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, कृष्ण शब्दस्य अत्र स्वयं भगवतः श्री कृष्ण तद्रूपाणाम च अन्येषाम् अपि ग्राहक तारतम्यम च अग्रे विवेचनीयम, कि कृष्ण शब्द यहाँ पे भगवान कृष्ण का, स्वयं भगवान का भी सूचक है, और उनके जो अन्य अवतार हैं उनका भी सूचक है। इसका तारतम्य आगे बताया जाएगा। तारतम्य का मतलब ऊंच नीच हायरार्की जो है वो आगे बताई जाएगी। आगे बताएंगे कि तत्रापि अ, तत्रापि एकांतिनम श्रेष्ठा गोविंद हर्त मानस येषाम शीश प्रसादु अपि मनोहर्तुम न शक्नुयात्, इन श्लोकों में कहेंगे। अथवा एक और श्लोक है, कई श्लोकों में तारतम्य आगे बताएंगे। और इससे पहले भी जो ये कृष्ण भक्ति दिव्य है, इसको भी कह रहे हैं अग्रे तो स्पष्टीकरिष्यते, आगे स्पष्ट करेंगे। और आगे कहाँ स्पष्ट किया है कि ये कृष्ण भक्ति दिव्य है? तो वो श्लोक है ना, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यत, तो वहां पे इसको स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सब जो है सबको लेना पड़ेगा। पर यहाँ कृष्ण के सारे अवतारों की बात भी नहीं हो रही, यहाँ पे बुद्ध आदि की बात नहीं हो रही, है ना। क्योंकि बुद्ध भी, भगवान भी कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि यहाँ का ना कृष्ण शब्द भगवान के अवतारों का भी सूचक है। पर भगवान के कुछ अवतार ऐसे हैं जो वेदों का विरोध करते हैं, तो उन अवतारों की बात नहीं हो रही यहाँ, बुद्ध भगवान की बात नहीं हो रही। इसलिए बुद्ध का अनुशीलन उत्तमा भक्ति नहीं होगी।
वरना सारे बुद्धिस्ट क्या हो जाएंगे, उत्तम भक्त बन जाएंगे, है ना। तो ये नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ कृष्ण शब्द में बुद्ध को हटाना पड़ेगा, है ना। बुद्ध का अनुशीलन उत्तम भक्ति नहीं है, इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं आप। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हाँ एक एक छोटा सा क्वेश्चन था। आपने हाँ। जैसे बोला अभी कि प्रहलाद महाराज की भक्ति करना भी उत्तम भक्ति के कैटेगरी में आएगा। सो सिमिलरली लॉर्ड शिवा इज वैष्णवानाम यथा शंभो। सो हम्म। वो प्योर डिवोटी है, तो उनकी भक्ति भी उत्तम भक्ति के कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी? नहीं, मैंने ना प्रहलाद महाराज की भक्ति करने की बात नहीं की। मैंने कहा प्रहलाद जी का अनुशीलन भी कोई करेगा तो वो भी उत्तम भक्ति होगी। और ऐसे ही शिव जी का कोई अनुशीलन करेगा, पर उनको वैष्णव मान के करेगा कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो वो उत्तम भक्ति होगी। पर उनको अगर स्वतंत्र भगवान मान के करेगा, कृष्ण के समान रख के, तो वो उत्तम भक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ये अंतर आ जाए। थैंक यू प्रभु जी, वेरी क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, one question. हम्म। So when we say bhakti is Bhagavan ki Sharup Shakti, हाँ। then it is exhibited through the devotee's body, mind, and speech and हम्म। the action. So does it mean that it should be free from all the three modes, Prabhuji? How do we हाँ understand this? हाँ, जो उत्तम भक्ति है वो तीनों गुणों से परे ही है। अब उस उत्तम भक्ति को हालांकि कई लोग कर नहीं पा रहे, है ना। ये मतलब उसमें अगर डेफिनेशन में अधिकतर सब लोग फेल ही हो जाते हैं। पर जो उत्तम भक्ति, जिस भक्ति की व्याख्या वो कर रहे हैं, वो तीनों गुणों से परे ही है। इसलिए उसके अलग अलग नाम है। उत्तमा, निर्गुणा, केवला, परा, अव्यभिचारिणी, शुद्धा, ये सब उस भक्ति के नाम है। तो इस प्रकार से ये तीनों गुणों से परे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Because this sentence, however, one should understand that though it is purely spiritual, it, हाँ, it makes its appearance in the body, mind, and words by taking over the functions of body, mind, and words. ये So ठीक इसका है। मतलब और एक बार समझना चाहता हूँ। हाँ, जैसे मान लो पानी है। अब पानी को, आप जल को किसी भी ग्लास में या किसी भी शेप उसमें डालो, तो जिसकी वो है वैसा शेप ले लेगा वो। जैसे कोई मान लो गोल बोतल हो, तो उसकी शेप वैसी गोल सी हो जाएगी। या कोई बोतल स्क्वायर मतलब वो, तो वैसी शेप ले लेगा। यानी जैसे वो जिसमें जाएगा वैसी शेप ले लेता है। तो उसी प्रकार पर जो भक्ति है इन सबसे अलग है। पर जैसी मन शरीर आदि में जाती है, तो उसकी वृत्ति के रूप में वो प्रकट हो जाती है। पर वो मन वृत्ति उनकी वृत्ति नहीं है, वो उनसे दिव्य है। क्योंकि हमारा मन माइक है, हमारी इंद्रियां माइक है, हमारा शरीर माइक है। और इनके द्वारा किए जाने वाली प्रत्येक चेष्टा माइक होती है। पर इन्हीं में जब भक्ति प्रकट हो जाती है, तो इन्हीं मन के द्वारा जो भक्ति के कार्य किए जाते हैं, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति के कार्य किए जाते हैं, वो तीनों गुणों से परे, वो दिव्य, अलौकिक, अप्राकृत हो जाते हैं। इवन हम जो भगवान का नाम है वो भी दिव्य है। पर हमारी जीवा पे जब आ जाता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि भौतिक हो जाता है, भौतिक शब्द वो तब भी दिव्य ही रहता है। इसलिए कई लोग है ना कहते हैं प्रेम भक्ति तो दिव्य है, पर साधना भक्ति नहीं। साधना भक्ति भी दिव्य है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। और ये भगवान की कृपा से जीवों के मन आदि में वृत्तियों के रूप में प्रकट होती है, ये कहने का भाव। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण। Prabhu, this mentioned that like body, mind, and words, like Prabhu, and how it will be impact body, Prabhu. Mind and words, I understand that one. So हम्म। how specifically they mention the body? देखो, जब वो शरीर में प्रकट होगी, तो भक्त जैसे शरीर के द्वारा जो भी कृष्ण अनुशीलन करता है, जैसे वो मान लो कृष्ण कथा सुन रहा है कानों से, या उसके मतलब शरीर तो लगता ही है, या भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान को दंडवत कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, या भगवान की परिक्रमा कर रहा है। तो ये शरीर के रूप में जो उसके द्वारा चेष्टाएं की जा रही हैं, दंडवत आदि प्रणाम, ये सब भी अलौकिक, दिव्य, अपराकृत हो जाते हैं। हालांकि लगने में लगता है कि ये वैसे ही झुका हुआ है, पर वो झुकना जो है वो सामान्य झुकना नहीं है। जो भगवान को दंडवत कर रहा है वो दिव्य है, अपराकृत है। उसमें भगवान की भक्ति की स्वरूप शक्ति आई है।
क्योंकि ये भक्ति बनी है भगवान की स्वरूप शक्ति से। तो शरीर की क्रियाओं के रूप में बेशक ये दिखाई दे रही है, या इंद्रियों की क्रियाओं के रूप में दिखाई दे रही है, या मन की वृत्ति के रूप में दिखाई दे रही है, पर ये वैसी है नहीं। ये दिव्य है और ये कृपा से ही आई है। हमें लग रहा है कि हम कर पा रहे हैं, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। ये है। Thank you, Prabhu. I got it clearly. Thank you, Prabhu. हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ जी। अब इसमें ये कहते हैं कि ये दिव्य है और ये स्वरूप शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है, हम्म। और साधना भक्ति के स्तर पे भी जो ये होता है वो स्वरूप शक्ति की मैनिफेस्टेशन है। हम्म। और साधना भक्ति अ, उत्तम भक्ति के अंतर्गत आती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब भक्त उत्तम भक्ति के स्तर पे नहीं है, इस डेफिनेशन के पहले वाली जो स्टेज है, हम्म। जब इस डेफिनेशन को हम पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम नहीं है, हम्म। और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, मतलब हम्म। पूरी तरह ये इस डेफिनेशन को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले जो हम भक्ति कर रहे हैं, हम्म। तो वो भक्ति भी स्वरूप शक्ति का ये है या क्या है? हम्म। तो उस भक्ति का वर्णन भगवान ने गीता में कहा किया 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में। उत्तमा भक्ति से जो पहले की भक्ति है वो भगवान गीता में बता रहे हैं। हम्म चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हम्म तो इसमें जो 4 प्रकार के भक्त बताए हैं ये उत्तमा भक्ति से पहले की अवस्था है। हम्म क्योंकि इसमें 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन तो कर रहे हैं, हम्म भजनते माम, है ना, और सबके सब पुण्यात्मा भी हैं, उदार बुद्धि के हैं, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हैं ये। पर इसमें कोई संकट की निवृत्ति के लिए कर रहा है, कोई भगवान को जानना चाहता है, किसी को कामना है धन आदि की, और कोई ज्ञानी है, इस प्रकार से भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति इनके यहाँ पे भी जो जितनी हो रही है, जितनी मात्रा में, वो भी दिव्य है, अलौकिक है। हालांकि अभी वो उत्तमा की श्रेणी में नहीं आई, पर फिर भी जो भक्ति वो कर रहे हैं वो भक्ति तो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति ही है, वो कहीं और से नहीं आ रही। है ना, भगवान की शक्ति से ही, स्वरूप शक्ति से भक्ति बनी है, माया से नहीं बनी। पर हाँ, अभी भक्त जो है, अब कमी भक्ति में नहीं है यहाँ पे, कमी यहाँ पे करने वाले साधकों में है। क्योंकि उनके अंदर ये दोष है कि अभी वो अन्य अभिलाषाओं को शून्य नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी भक्ति उस स्तर पे उत्तमा नहीं आ रही। पर वो भक्ति जो है वो तो वही दिव्य है। इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे आप, हमारा किसी का बल्ब है 5 वोल्ट का, हम्म तो आप कहो कि भाई रोशनी 100 वोल्ट की क्यों नहीं दे रहा, पीछे शायद जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो करंट आ रहा है, उसमें गड़बड़ी है। करंट में गड़बड़ी नहीं है, आपके बल्ब में कैपेसिटी इतनी है। अगर आपको इतनी लाइट चाहिए तो आपको बल्ब चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो पीछे जो शक्ति है वो तो वैसी शक्ति है, पर उस शक्ति का हम सही जो है अभी प्रयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अपनी भक्ति को क्या कर रखा है, मिश्रित बना के रखा है अपनी कामनाओं से। तो भक्ति तो वो भी दिव्य ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, भक्ति दिव्य ही होती है ये। और इसलिए वैसी भक्ति कर करके भी लोग शुद्ध हो गए कई, है ना। और जैसे गजेंद्र आदि पवित्र हो गए, वो आर्त भक्त थे। इवन जो ध्रुव आदि हैं वो शुद्ध हो गए, वो अर्थार्थी थे। शौनक आदि शुद्ध हो गए, वो जिज्ञासु थे। 4 कुमार आदि शुद्ध हो गए, वो ज्ञानी थे। तो क्योंकि पीछे जो मार्ग है वो तो पवित्र है, वो तो शुद्ध ही है ना, वो शुद्ध कर देगा। इस प्रकार से ये है, वो भी दिव्य ही है। और 8 किलोमीटर दूर है। प्रभु जी। प्रेमनाथ मुरारी प्रभु, आप कुछ कह रहे हैं? म्यूट कर देते हैं। तो प्रभु जी, बेसिकली तो ये 7.16 की स्टेज से और हाँ। प्योर भक्ति की स्टेज पे आने के लिए हम हम्म। लोग ये शिवराम साईं महाराज का शुद्ध भक्ति चिंतामणि पढ़ रहे थे। हम्म। इसमें वो बता रहे थे कि एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज और हेयरिंग का बहुत ज्यादा महत्व है।
हाँ बिल्कुल। वो चीज ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हाँ, भक्तों का जब संग होगा, हम्म, जैसे भक्तों का संग करेंगे, शुद्ध भक्तों का जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर भी वैसी पवित्रता, वैसी शुद्धि आती जाएगी। और हम्म, साथ में भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भागवत आदि सुनेंगे, तो उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। और ध्रुव महाराज ऐसे ही पवित्र हुए, है ना, उनके अंदर कामना खत्म हो गई बाद में, और भगवान के एकदम शुद्ध भक्त बन गए। कहाँ पहले वो सकामी थे, पर हम्म, एकदम बाद में शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे कई भक्तों के एग्जाम्पल आते हैं जो सकामता से जिन्होंने शुरू किया, पर एकदम वो उत्तम भक्त बन गए। इसलिए कई बार निष्कामता से सकामता श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि निष्कामता में व्यक्ति को कुछ चाहिए नहीं, वो पड़ा हुआ है ढीला ढाला। सकामता में कई बार वो जोश आ जाता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो हम्म, वो चाहिए, और पता चल रहा है कि भाई भगवान से मिलेगी, तो वैसे उत्साह से भक्ति कर रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान के संपर्क में जब कोई आता है ना, तो भगवान उसको पवित्र भी कर देते हैं, कैसे भी उनके संपर्क में आ जाएगा। तो कई बार सकामता भी मतलब अच्छी मानी जाती है, अगर वो जीव उत्साही हो। इसलिए भागवतम ने क्या शिक्षा दी, भागवतम ने यही कहा, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। चाहे तुम अकाम हो, चाहे सर्व काम हो, या निष्काम हो, या मोक्ष काम हो, कुछ भी हो, बस तुम क्या करो, तीव्र भजन योग से, भक्ति योग से भगवान का क्या करो, भजन करो। ये कहने का भाव है। और पर लोग गोस्वामी यहाँ पे वो जो डेफिनेशन दे रहे हैं, वो उत्तमा भक्ति की दे रहे हैं, और उसमें वो कह रहे हैं नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य। देखो, ये भक्ति रसामृत सिंधु है, और उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी सागर में, तभी रत्न मिलेंगे। इसलिए यहाँ हमने पहली डुबकी लगाई तो एक रत्न हमें मिला। और रत्न क्या मिला, भक्ति की डेफिनेशन, उत्तमा भक्ति की परिभाषा क्या है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये उसके तटस्थ लक्षण है। पर उसका मेन स्वरूप लक्षण क्या है, आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम, और यही क्या है, भक्तिर उत्तमा। तो ऐसे हम कई डुबकियां लगाएंगे आगे भी, और कई रत्न हम निकाल के लाएंगे, है ना। इसमें इस प्रकार से ऊपर ऊपर से रत्न नहीं मिलेंगे, समुद्र के भीतर जाना पड़ेगा थोड़ा गहराई में। ये है। थैंक यू प्रभु जी। वाकई में मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आनंददायक ग्रंथ है। इसमें एक क्लैरिटी फॉलो मिलेगी हम क्वेश्चन है लोगों को। प्रभु जी। हाँ हाँ। शंभू प्रभु जी। तो भगवत गीता में सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण द 9.22 वर्स वो उत्तम भक्ति कह सकता है हम, बिकॉज 9:22 में, अनन्यास चिंतयन्तुम। हाँ, अन्यन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। हाँ, ये अनन्य जब लगा दिया ना, तो ये अनन्य उत्तमा के लिए है। देखो, उत्तमा या अनन्य भक्ति में तीन चीजें आएंगी, तब वो अनन्य बनेगी। इष्ट की अनन्यता, साधन की अनन्यता, और कामना की अनन्यता। ये तीन चीजें आने से भक्ति अनन्य बनती है, इसी को उत्तमा भक्ति कहते हैं। इष्ट की अनन्यता क्या है, कि अनन्य का मतलब है और किसी के पास नहीं जाना, कि आज तो कृष्ण के पास आ गए, कल भाई दुर्गा जी के पास चले गए, नवरात्रे थे तो हमने प्रभु जी दुर्गा जी की पूजा कर ली, या कभी शिव जी के पास चले गए, या कभी ब्रह्मा जी के पास चले गए। ऐसा नहीं, तो इष्ट की भी क्या होनी चाहिए, अनन्यता होनी चाहिए। और दूसरी अनन्यता है साधन की, कि आज भक्ति कर लिया, कल भाई योगियों के बीच में बैठे तो अष्टांग योग कर लिया, कल को ज्ञानियों के बीच में बैठेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग जहां जाते हैं ना, वैसे बन जाते हैं। तो इष्ट की भी और साधन की भी अनन्यता होनी चाहिए, और कामना की भी अनन्यता होनी चाहिए। कामना की अनन्यता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और कोई कामना नहीं होना चाहिए, जिसको रूप गोस्वामी ने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो उसको तब कहेंगे अनन्यता। तीन प्रकार में से यहाँ कई बार देखा जाता है एक भी अनन्यता नहीं होती, है ना। न इष्ट की अनन्यता है, न साधन की है, न कामना आदि की है।
तो फिर कैसे अनन्य भक्ति होगी? तो ये जो अनन्या भक्ति है ये भी उत्तमा भक्ति है। इसी को रूप गोस्वामी अनन्य शब्द को ही कह रहे हैं, अन्य विलासिता शून्यम। और कृष्ण अनुशीलनम में वो इष्ट भी बता रहे हैं कि कृष्ण का ही अनुशीलन होना चाहिए। तो इस प्रकार से है ना। और ज्ञान कर्मादि अनावृत में साधन की भी अनन्यता बता रहे हैं कि साधन भी केवल भक्ति का ही होना चाहिए। इस प्रकार से जो रूप गोस्वामी ने परिभाषा दे दी है ना, उस परिभाषा से कोई श्लोक बाहर नहीं जाएगा। ऐसी श्लोक दे दिया, ऐसी परिभाषा सेट कर दी कि उससे कुछ बाहर नहीं निकलेगा, न अभी न प्रेम भक्ति में। यही उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन रहेगी हमेशा। तो ये परिभाषा सूत्र है इस ग्रंथ का। जैसे भागवत का परिभाषा सूत्र कहाँ है? अवतार के प्रसंग में, कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब अवतारों की बात चलेगी तो वहां पे परिभाषा किस सूत्र की लेनी पड़ेगी? इस श्लोक की लेनी पड़ेगी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कहीं अन्य भागवत कहेगा कि सारे अवतार विष्णु से आते हैं, तो ये वाला परिभाषा सूत्र उसको काट देगा, क्योंकि परिभाषा पहले ही सेट हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये जो अन्य विलासिता वाला शून्य है, ये परिभाषा है, और पूरे ग्रंथ की व्याख्या इसी श्लोक को केंद्र में रखकर करनी पड़ेगी। जो इस परिभाषा के बाहर निकल गया, यानी एक रूप गोस्वामी ने एक बॉर्डर बना दिया, इस बॉर्डर से जो बाहर निकलेगा वो उत्तमा भक्ति नहीं है। जो इसके भीतर रहेगा वही उत्तमा भक्ति है। ये थैंक यू प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। So we'll continue it next time. हम्म। Thank you very much. Thanks, His Grace Amoghliga Prabhuji, for joining us. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू बहुत फॉर इनवाइटिंग। धन्यवाद। अगर भक्त तू जैसे टीचर हो तो भाई कौन नहीं आएगा भला बताइए। कोई भक्ति रस आप शुद्ध बढ़ा रहे हो, अद्भुत। प्रभु जी प्लीज ऐड करिएगा अगर आप चाहते हैं किसी अपन कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें किसी और तरीके से, मतलब वी कैन एनहेंस द होल थिंग। क्या ऐड करें मतलब प्रभु जी? मतलब अगर आप कुछ और की किस तरीके से अपन इसको पढ़ें, मतलब प्रभु कुछ जी इससे और अधिक ऑथेंटिक तरीका क्या हो सकता है कि प्रभु जी हमें शब्दों के अंदर लेके जा रहे हैं। मतलब पूरे पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारा सौभाग्य खुला है कि भक्त में प्रभु जी हमारे पास लोकली अवेलेबल है। थैंक्स यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ये आपकी कृपा है प्रभु जी। आपकी कृपा है प्रभु जी। आपने इतना साधन भजन किया हुआ है, आपने पके हुए फल ऐसे पकड़ा देते हैं हमें भागवतम में, भक्ति रसामृत सिंधु में। आपके अद्भुत रियलाइजेशन है प्रभु जी, प्रभु जी अद्भुत। हर सैटरडे को हम लोगों को संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा ओ, पढ़ती पढ़त पढ़ाई पढ़ा पढ़ा चल रहा है आजकल। आजकल क्या पढ़ा रहे लकार? क्या पढ़ा अभी रहे हैं आजकल? अभी अभी तो तो शुरुआत हुई है प्रभु जी। शुरुआत ही हुई है। अच्छा अभी ओ, वर्णमाला वगैरह सीख रहे हैं। अच्छा वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, हाँ। बढ़िया है। अनुस्वार, बढ़िया है। थैंक यू प्रभु जी। जय श्री भक्त प्रभु जी की जय, भक्ति रसामृत जय की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, जगत गुरु श्री जय प्रभुपाद जय जी की जय जय। जय। हरे कृष्ण।